Yes. Okay. So I'll just start with something. What is happening? ओके मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? No. No. अब दिख रही है? नहीं. No. अभी? No, नहीं. नहीं दिख रही? नहीं. ऐसे कैसे नहीं दिख रही? ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज बोलस? व्हाट इज बोलस? Yes. Moist क्या है lump. बोलस? Bo- when वेरी the food gets wet in the mouth. okay so we will start from the digestive system today itself. okay so digestive system में मतलब आज का जो लेक्चर होगा पूरा बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगा. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एडवांस लेवल पे धीरे 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 जाएंगे. ओके जस्ट मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए बस. ओके जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके कल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाया आप बताओ तो मुझे धीरे धीरे. मैं नहीं थी ना कल फिजिक्स के लेक्चर में. सो जस्ट एक्सप्लेन मी. हाँ. गो अहेड. Sir told that decimeter, deca hectokilometer. He teach this. ओके दक्ष और क्या पढ़ाया? And the information about physics, more information. विच इंफॉर्मेशन? You guys don't make notes or what? I make. Daksh, you? No, I forgot. Why so? ऐसे नहीं चलेगा. You need to make notes. Okay. फिर मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया? Maths में decimal fraction and fraction. Okay. Decimal to convert the fraction. Decimal into Fraction convert. proper fraction converted into mixed fraction. Decimal fraction convert into हाँ. mixed fraction. That points. Okay. Very good. Are you sharing the screen? Yes, yes. There's a network issue. Just wait a second, okay? Okay. Something is happening. Just give me 2 seconds.
अब दिख रहा है? No. No. Okay. So our official page will share the presentation. Till then we'll just discuss कि आज क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है. Okay. So we'll start from the mouth. डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली चीज आती है वो होती है माउथ. ओके. माउथ में आती है दो चीजें. कौन सी दो चीजें होती है माउथ में? Two. 32. 32 टिच. अब उसमें कौन कौन से टाइप के टिच होते हैं? किस किस को पता है? मुझे. ओके, गो अहेड. First is something from eye. The second type of teeth is canines. Third are premolars. Fourth are molars, and fifth is it is an optional wisdom teeth. Okay. So first is incisors. Okay, that is what from eye. Then molar, premolar and canines. अब किसको पता है कि कितने इंसाइजर्स होते हैं, कितने मोलार्स होते हैं, कितने प्रीमोलार्स होते हैं? There are two incisors. There are two incisors in each jaw, means 4. There are two canines in each jaw, means 4. There are four premolars in each. There are 4 premolars in each jaw, means 8. And there are 4 molars in each jaw, means 8. Okay, I'll explain you. It is I, C, P, M and M. Okay. What is it? I, C, P, M and M. I is incisors. Write it down. I, ऐसे लिखो I. Daksh, write it down. C, P, M and M. Okay. Okay. Done. I, C, P, M, M. लिखा? I कितने होते हैं? इंसाइजर्स कितने होते हैं? 2 in each अब jaw. हाँ, ओके. तो ऐसे बीच में एक लाइन बनाओ. ओके. ऊपर लिखो I, C, P, M, M. लिखा? फिर नीचे एक लाइन बनाओ. I कितने होते हैं? 2 I होते हैं. इंसाइजर्स कितने होते हैं? ईच जॉ में 2 इंसाइजर्स होते हैं.
कनायन कितने होते हैं? ईच जॉ में 1 1, ऊपर वाले जॉ में 1 होते हैं, नीचे वाले जॉ में 1 होता है. ओके. इंसाइजेस कितने होते हैं? 2 2. कैनाइन होता है 1 1, प्रीमोलार होते हैं 2 2. लिखा. मोलार कितने होते हैं? 3 3, 3 3. टोटल कितने हुए? काउंट इट डाउन. 8. 2 1 2 3. What is it? 2 1 2 3. Right? Two, 1, 2, 3. What is 2? Incisor. What is 1? Is canine. What is third? Premolars. And what is fourth? Molars. Molars. So ICPMM. ICPMM. 2 1 2 3. 2 1 2 3. Okay, understood? याद रहेगा? Yes. 2 हाँ. 1 2 3. ICPMM. Say it again. Mic on करो सब. ICPMM. PMM. हाँ, तो इंसाइजेस कितने हुए हैं? 2 2. कैनाइन. 1 प्रीमोलार्स. 2 एंड 2. मोलार्स. 3 3. ओके. सो क्या हुआ? ICPMM 8 8 16. 8 8 16. 16 16 32. अंडरस्टूड? Yeah. 8. आगे विवान, why are you confused? No, I'm not confused. Okay. 8 8 16 एंड 16 16 32. ये अडल्ट का हुआ. ओके. अब हमारे टीथ के ऊपर एक वाइट कलर का पोर्शन होता है. ओके. Crown. Crown. उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इनामल. राइट इट डाउन. व्हाट इज इट? इनामल. द वाइट पोर्शन विच, राइट इट डाउन स्लोली. द वाइट पोर्शन which makes your teeth stronger is known as enamel. ENAMEL. Done. Okay. Then our tongue is freely movable. Okay. Show me your tongue.
Okay, it can move. Very good. It can move anywhere. So tongue is attached to our jaw. टंग जॉ को अटैच होती है, तो उसको कुछ तो लगेगा अटैच होने के लिए, रबर बैंड, राइट? दैट रबर बैंड इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम. सो राइट इट डाउन. द टंग इज अटैच्ड टू आवर जॉ. The tongue is attached to our jaw with the frenulum. 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 Done. What are we just studying? We are just studying mouth. Okay. So, have you ever seen some old people जिनके मुंह में टीथ ही नहीं होते? Okay. तो that all portion is empty. Okay. And जो सबके टीथ होते हैं वो जॉ को अटैच होते हैं, राइट? राइट. तो जॉ को अटैच होते हैं. When our teeth are attached to our jaw, that type of dentition is called thicodont. Okay. ये जो अटैचमेंट है हमारे जॉ में, जो टीथ अटैच होते हैं एक दूसरे को, दे आर ऑल कनेक्टेड. लाइक मतलब ये जो जॉ है ये सरफेस में, मतलब ये सूटकेस में सारे एकदम परफेक्टली पैक किए गए. ऐसा नहीं होता है कि किसी के इंसाइजर्स पीछे चले गए, किसी के कैनाइन्स आगे आ गए, किसी के प्री मोलार्स पीछे हो गए. ऐसा नहीं होता है. सबका सब कुछ प्रॉपर वे में अरेंज होता है. दैट टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड थीकोडंट. अंडरस्टूड? सूटकेस में सारे टीथ्स अच्छे से पैक करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोलते हैं थीकोडेंसी. दैट इज थीकोडंट. राइट इट डाउन. Our teeth are packed in oral cavity that type of dentition is called thecodoncy. ओके. Done. मुझे एक चीज बताओ, आपको कितने बार टीथ आए अभी तक? 2 बार. ओके. इसके बाद कभी आ सकते हैं वापस? नहीं. No. ओके. सो एक बार टीथ गए फिर से आए, दैट मीन्स 2 बार आपको टीथ आए, राइट? तो दैट टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोडेंट. Okay, thecodont is, do not get confused between thecodont and diphodont. Di means 2. So thecodont is attachment of proper teeth in our socket of oral cavity is thecodoncy.
And what is difodent? Difodent is कि एक बार टिथ गए बचपन में, फिर से आपको टिथ आए, राइट? 2 बार टिथ्स आए आपको, तो that type of dentition is called difodont. Understood? Thecodoncy is fixing of teeth into jawbone, and difodoncy is बार बार 2 बार टीथ आना. Okay, write it down. What is difodont? What is thecodont? Do not get confused. Okay. Okay, look at the camera and tell me what is like formula of your teeth. I didn't understand the question. Formula of your teeth, what is it? कितने टिथ्स होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं? अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर टेथ, सो यू शुड ऑलवेज से ICPMM 2123 अपॉन 2123. So what is the formula of your teeth? ICPMM upon 2123. Okay, very good. Then tell me, what is frenulum? Do not look into your notebooks. Please switch on your camera. What is frenulum? What is frenulum? The process, the tongue is attached to the jaw with and it is attached with the help of a substance called frenulum. It is not a substance, it is like muscular part. Okay. What is thecodont, Daksh? Daksh. What is thecodont? Thecodont means our teeth that are packed with the substance that is called as thecodont. Okay. What is difodont? The process of falling off teeth and coming the teeth back is called as Thecodont. uh, decodent. Difodont. स्पेलिंग क्या लिखी है आपने डाइफोडेंट थीकोडेंट की? DIFODENT. Okay. I'm not sure why I can't share my screen. Okay, just do not left. मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ, अगर पॉसिबल हो रहा होगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी आई थिंक. जस्ट डू नॉट लीव.
ये ओके, दिख रहा है सबको? नहीं, नहीं दिख रहा है अभी भी? सिर्फ डी मुझे स्क्रीन लेटर दिख दिख रही रहा है। है। वीडियो ये प्रेजेंटेशन कुछ नहीं दिख रहा है या? दिख रहा है, नहीं, सिर्फ डी लेटर दिख रहा है। डी लेटर, विच डी लेटर? अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? ओके, तो जितना हमने पढ़ा है अभी तक मैं जस्ट एक एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स. ओके ओके, what happens to our food after we eat them? Just switch on your mic, camera and answer fast. Okay, do not waste time now. What happens to our It food? gets wet. What happens to our? It gets wet because of our saliva. Because Okay, Then it goes into the stomach from the food pipe, which is called esophagus, and then after it goes into the okay. Uh, just check your spellings. डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ईसोफेगस की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है या ओ से स्टार्ट होती है. समटाइम्स पीपल राइट इट EOSOFAPHAGUS and sometimes people write it O से. Okay, so it's same. Our food gets broken down even more in the small intestine and our body takes all the nutrients from it. So small intestine में से सबसे ज्यादा nutrients आते. Okay okay. yes, Then there are three helpers: liver, pancreas and gallbladder. ये जो तीन चीजें, ओके, सो लुक एट, सबको ये ड्राइंग दिख रही है? yes, ओके, सो दिस इज आवर लीवर. ये है ईसोफेगस. ईसोफेगस सीधा जाता है स्टमक में. ओके, दिस इज आवर लीवर. लीवर दिख रहा है ना? लीवर दिख रहा है? yes, दिस इज आवर पैंक्रियास. ये लेजर दिख रहा है क्या सबको? दिस इज आवर नहीं, पैंक्रियास yes, and this is our gallbladder. This is liver, this is pancreas and this is gallbladder. Okay, ये जो तीनों चीजें, I cannot. what you can't see? I cannot see your mouse pointer. Now Daksh, can you see? yes, Okay, there must be any network issue with you, Vivan. Yes, I will check. Yes, so this is liver. Exact. No, I'm not drawing anything. Okay, so this is the large intestine. This is stomach.
स्टमक के नीचे है एग्जैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो एरो दिखाया गया है ब्लू कलर में, इट इज शोइंग लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये येलो डॉट दिख रहा है सबको, दैट इज आर लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके अंदर जो पिंक कलर का है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड दिस इज एनस। येलो डॉट है, दिस इज एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन है, दिस इज एनस, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से एक बार देखो, दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस इज कनेक्टिंग टू स्टमक, दिस इज लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, एंड दिस इज एनस। Okay, so the major component of our food are carbohydrate, protein and fats. अगर किसी को बॉडी बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? Protein. यस। एंड अगर समवन इज वेरी हेल्दी, ओके, तो व्हाट दैट पर्सन शुड लूज? उसकी Fat. बॉडी, यस। And why the carbohydrates are important in healthy person as well as thin person? Why carbohydrates are important in healthy person as well as thin person? Anyone? Vivan, Daksh? Our main need of our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrates. Very good. Vivan? I don't know. Okay. Is Disha with us? Okay. So why the carbohydrates are important? I'll tell you. कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सो एनीवन एवर हर्ड नेम ग्लूकोज? Yes. ग्लूकोज इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। हम कुछ भी काम कर रहे, इवन दो वी आर स्लीपिंग, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। एंड एनर्जी हमें किस चीज से प्रोवाइड होती है? व्हाट इज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी? ग्लूकोज। सो whatever carbohydrates we are eating, okay, that goes into our body, एंड वो कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन होके वो कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होते हैं ग्लूकोज में। सो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी। तो अगर कोई फैट पर्सन है, उसे जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, एब्स बनाने हैं, उसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए उसको एनर्जी लगेगी। एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज बॉडी में कैसे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से बनेगा। So fatty person also needs carbohydrates because carbohydrates get converted into glucose and glucose gives us energy. So अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो you can write it down, carbohydrates एरो करके ग्लूकोज, एरो करके एनर्जी। ओके, राइट इट डाउन। हो गया लिख के? हो गया लिख के? हो गया। ओके, फिर ये हो गया फैटी पर्सन को एनर्जी क्यों लगती है। अभी थीन पर्सन, थीन पर्सन है मतलब क्या हुआ? थीन पर्सन का ये मतलब नहीं होता है कि वो वीक होता है। थीन पर्सन जो होता है उसमें मसल मास और फैट कम होता है। तो फैट उसमें कम है, उसको खाना खाना है, उसको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कुछ भी चीज हो, उसके लिए उसको कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लगेंगे? क्योंकि उसको
कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन ग्लूकोज में करके एनर्जी आउटपुट दिखाना है, राइट? तो इसीलिए थीन पर्सन को भी कार्ब्स लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर, आपने कभी भी इसमें सुना होगा कि कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह, तो कार्ब्स मतलब ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? कोई भी ग्रेन हो, ग्रेन्स एज इन व्हीट, जार, बाजरी, सब, बाजरा, सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एप्पल, बनाना, ये जो 3 चीजें, और भी जो फ्रूट्स होते हैं उनसे भी हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बट दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, राइट इट डाउन। आई वोंट टेल यू एवरी टाइम कि राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हमें किससे मिलते हैं? अगर कोई पर्सन है जिसको एब्स वगैरह बनाने हैं, बॉडी बनानी है, तो दे मोस्टली टेक प्रोटीन्स। सो व्हाट इज दैट प्रोटीन? जो प्रोटीन पाउडर होता है वो किस चीज से बनता है? दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो होता है वो इन्हीं सारी चीजों से बनता है। दिस, दैट वे प्रोटीन, दैट प्रोटीन पाउडर इज मिक्सचर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, द हाई प्रोटीनेशियस जो सब्सटेंस होते हैं नेचुरली बनाए हुए, वो सारों का जो मिक्सचर होता है दैट इज द प्रोटीन। ओके, इट कंटेन्स आलमंड्स, चिकन, योगर्ट एंड योक जो होता है, एक का जो योक होता है, दैट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन। ओके, ओके, Yes. ओके। Yes. देन फैट्स किससे मिलते हैं? एवोकाडो, एग, नट्स, डार्क चॉकलेट, इन सारी चीजों से फैट मिलता है। ओके, लेट्स गो अहेड। ये राइट डाउन करो कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीनों चीजों से ही अपनी पूरी बॉडी चलती है। दीज आर द मेन 3 फैक्टर्स। इन्हीं चीजों से सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं और बॉडी वर्क करती है। सारी चीजें, मतलब कोई भी कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि आपके बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से, कंपोनेंट कौन से, दैट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रोटीन बिल्ड्स आवर बॉडी। ओके, मतलब मसल मास वगैरह ये सारे प्रोटीन से बनते हैं। एंड व्हाई द फैट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको भी फैट, मतलब हार्ट के अराउंड अगर थोड़ा बहुत फैट है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड एक कुशन की तरह अगर कुछ काम करता है, दैट वर्क्स एज अ फैट। ओके, हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे फैट स्टोर्ड होता है। सो वो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइटल ऑर्गन मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्रेन, हार्ट, लिवर, स्टमक, पैंक्रियास, दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है फैट। उसके नीचे होता है मसल, मसल के ऊपर होता है फैट। पर अगर फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इट शोज आउट आउटसाइड। इंपॉर्टेंट जगह पे फैट होना इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड कुशन की तरह काम करना, ये फैट का मेजर वर्क है। फैट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कब एनर्जी प्रोवाइड करता है? जब कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते। तो जिम में जाने वाले लोग क्या करते हैं मोस्टली, वो ना कार्ब्स कम खाते हैं। मतलब क्या करते हैं, जिस चीज से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है ना वो चीज वो कम खाते हैं। तो वो डायरेक्ट ग्रेन्स नहीं खाएंगे, एप्पल, बनाना, ये चीजें डायरेक्ट नहीं खाएंगे जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। वो चीज का वो फास्टिंग करेंगे। इट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वर्ड यूज करते हैं वो। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो नहीं खाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को एक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती। तो क्या होता है, बॉडी प्रोटीन तो यूज नहीं कर सकती क्योंकि प्रोटीन इज द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। डायरेक्ट प्रोटीन यूज नहीं करेगी बॉडी, तो क्या करेगी, स्टोरेज में बॉडी के पास क्या पड़ा है, फैट पड़ा है। तो बॉडी अपने फैट का ब्रेक डाउन करती है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है और फिर फैट से धीरे 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 एनर्जी बनाती है। तो जिन लोगों को जिम में जाके फैट रिड्यूस करना होता है, दे चूज टू फास्ट। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं, मतलब अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते ही नहीं है।
तो बॉडी गेट्स कंफ्यूज कि अरे कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल ही नहीं रहे, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? सो बॉडी क्या करती है? फैट को यूज करती है एनर्जी बनाने के लिए। ओके ओके Yes. 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 ओके जो हमने पढ़ा था वही है ये। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल मतलब माउथ, ईसोफेगस, ये सारी चीजें होती है एलिमेंट्री कैनल में। ओके एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मतलब कौन से ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैंक्रियास ग्लैंड। ग्लैंड मतलब क्या होता है ये पहले आप मुझे बताओ, आप एक्सप्लेन करो मुझे, व्हाट इज ग्लैंड्स? What, according to you, what is glands? Go ahead. Juices come out of that part that is called as glands. Exactly. That's what I want. जिस चीज से जूसेस बाहर आते हैं, जिस चीज से कोई भी मिक्सचर बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बाहर आती है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस बाहर आते हैं, तो पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड। स्टमक से HCl वगैरह ऐसे स्टमक के गैस्ट्राइटिक जूसेस बाहर आते, दैट इज ग्लैंड। पैंक्रियाज हो गया, लीवर से जूसेस बाहर आते, दैट इज ग्लैंड। तो मैंने बताया था पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। कभी भी मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आपका जो एब्डोमेन है, स्टमक है, तो इमेजिन होना चाहिए कि लेफ्ट अपर पार्ट में, आई जस्ट शो यू, ये जो इमेज है ऐसी की ऐसी आपको इमेजिन होनी चाहिए। कर्सर दिख रहा है सबको? हेलो, कर्सर दिख रहा है? No. नहीं. ये कर्सर नहीं दिख रहा? No. नहीं. ओके तो स्टमक जो है, ईसोफेगस दिख रहा है सबको? No. ईसोफेगस नहीं No. दिख रहा ये डायग्राम में? No. अरे डायग्राम ही नहीं दिख रही है. स्क्रीन डायग्राम वाला पेज ही नहीं दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा है वो. मेजर कंपोनेंट्स है ना वो वाला पेज है। अभी भी वही पेज है क्या? यस. यस। हाँ. अब चेंज हुआ? नो. ओके ओके अब हुआ ना चेंज? अब दिख रहा है? यस। यस. सो कर्सर दिख रहा है? यस। सो जब भी मैं आपको Yes. एब्डोमेन इमेजिन करने को बोलूं, तो सबको ईसोफेगस पहले दिखनी चाहिए। ये ईसोफेगस अपने सीधा जाएगी स्टमक में। इसके एग्जैक्ट ऊपर होता है लीवर। ओके ओके से यस, से नो। यस। Yes. This is, why are you muting your mics? Just unmute it for some time. This is liver. This is what is this? Pancreas. This what is this? Pancreas. Pancreas. What is this? Liver. ये तो लीवर हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया। What is this? This small bag. Disha, what is this? Gall bladder. Gallbladder. Yes.
सो स्टमक के ऊपर होता है राइट साइड में लीवर, स्टमक के नीचे होता है पैंक्रियास, एंड पैंक्रियास को अटैच होता है गॉल ब्लैडर। ओके, तो Yes. ये जो दो पाइप दिख रहे हैं आपको, Yes. ये पाइप Yes. लीवर के जूस, ये दोनों पाइप लीवर के जूस लेके आएंगे। लीवर से इनकी स्टमक में चल रही है पार्टी, तो क्या होगा, लीवर अपने दो जूसेस को लेके आएगा ये पाइप से, फिर ये गॉल ब्लैडर अपना जूस देगा इस पाइप से। लीवर लेके आया ये अपने जूसेस, गॉल ब्लैडर लेके आया ये अपने जूसेस, इन दोनों के जूसेस गए पैंक्रियाज में, और फिर पैंक्रियाज का जूस गया स्टमक में, और फिर स्टमक का जूस मिक्स होके हो गई पार्टी। तो लीवर के जूस गए इस पाइप से, गॉल ब्लैडर के गए इस पाइप से, फिर गए पैंक्रियास। ओके, तो लीवर किस Yes. साइड में होता है, Yes. राइट साइड में। Right. ओके, स्टमक कौन से साइड में होता है, लेफ्ट Left. साइड में। पैंक्रियास कौन से साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। Left. ओके, अंडरस्टूड। Yes. Yes. Just check out your spellings. Yes. Each tooth is embedded in a socket of jawbone is called thecodont. Spellings right है? Okay. Set of temporary milk teeth. Set of temporary milk teeth replaced by a set of permanent teeth. मिल्क टीथ जब रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से, उसे हम कहते हैं डाइफोडंट। इसका भी स्पेलिंग चेक कर लीजिए। Yes. Okay. Yes. So there Yes. are 32 permanent teeths. ICPMM 2123 2123. Okay. The hard chewing surface of the teeth is made up of enamel. Hard chewing surface of teeth is made up of enamel. The tongue is freely movable organ attached to the oral cavity by frenulum. Okay. Yes. 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 Okay. Now we'll go to the next point. A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. ओके, तो ये हो गया विंड पाइप, और ये हो गया फूड पाइप। विंड पाइप छोटा होता है, फूड पाइप बड़ा होता है। हो गया। ये जो फूड पाइप होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, Glottis. ग्लॉटिस। What is it called? Glottis. Vivan, what is it called? Glottis. Disha, what is it called? ओके, सो जो विंड पाइप के ऊपर, फूड पाइप के ऊपर, ईसोफेगस के ऊपर की जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस, एंड उसके ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो फ्लैप होता है, जो फ्लैप होता है, मैंने बोला था कि फूड अंदर जाने के लिए एक शटर होता है ऑन ऑफ वाला, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ओके, Yes. so the opening, write it down, a cartilaginous flap, a cartilaginous flap called epiglottis prevents entry
food into the glottis. What is glottis? Opening of a windpipe. ये है स्टमक. ओके, स्टमक दिख रहा है सबको? Yes. Yes. स्टमक का शेप कैसा है? किस अल्फाबेट की तरह आपको स्टमक का शेप दिख रहा है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू. किस अल्फाबेट की तरह? G. J. So the shape of stomach is J shape. Okay. If someone asks you what is the shape of stomach, so the shape of stomach is J shaped. Okay. The shape of stomach is J shaped. The next thing is what? Food goes into the stomach. Food goes into the stomach. तो जब स्टमक में फूड जाएगा तो उसको कुछ तो लगेगा. मतलब ऐसे सीधा तो जाते ही डायरेक्ट सीधा अंदर नहीं जाएगा वो. उसके लिए एक कुछ तो भी मूवमेंट चाहिए. तो फूड ऐसे 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 करते हुए नीचे जाता है. ऐसे. हाँ, We cannot see a diagram. आई एम नॉट मेकिंग एनी डायग्राम. यू कैन. प्रेजेंटेशन दिख रहा है हाँ. तो लुक एट मी. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मूवमेंट. ऐसे 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 करके फूड नीचे जाता है. ओके. ये पाइप होता है. It is showing a cartilaginous flap called epiglottis prevents entry. This slide it is showing. ओके. Mic. तुझा अभ्यास झाला तर जा खाली. Oh. उठ.
तुला तुला मार खाणार यार, तू त्याला डिस्टर्ब करू नको, त्याच्या टीचर त्याला आता ओरडले. Okay. Yes.